आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कब राइज होता है? नंबर वन, आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइज होता है ड्यू टू अ फॉल इन लेबर कॉस्ट। जब आपकी लेबर कॉस्ट फॉल हो जाए। इकोनॉमी में लेबर कॉस्ट कब कब फॉल हो सकती है? इकोनॉमी में लेबर कॉस्ट फॉल हो सकती है ड्यू टू फॉल इन मिनिमम वेजेस, ठीक है, ड्यू टू और का फर्स्ट ईयर ड्यू टू मे बी राइज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, because of more training and education and whatever, right? Maybe more specialization, stuff like that. सही है? और rise होती है due to um, reducing the power of trade unions, reducing trade union power. तो आपकी जब labor cost fall होती है ना, तो it reduces your cost of production and that results into a rise in your short run aggregate supply curve, ठीक है? Rise in labor productivity will actually reduce your average cost, ठीक है ना? अच्छा, so basically primarily it short run aggregates. अच्छा, number two दूसरा है आपका fall in your raw material cost वगैरह, आपका raw material cost वगैरह गिर रहा है अगर, ठीक है, that results into again a fall in cost of production. तो primarily अगर देखा जाए तो raw material cost के fall होने से या labor cost या cost of production के fall होने से आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो राइट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? नंबर थ्री, फॉल इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. If the government reduces indirect taxes on the economy from the economy, ठीक है ना? Indirect tax is basically a tax on firms. It is a tax on product. It is a tax on firms' products. It is a tax on firms. It is a tax on firms' products. And we know that indirect tax increases the cost of production. So when the indirect taxes fall, so what happens is that cost of production falls. And when cost of production falls, your short-run supply curve shifts to the right, right? So basically what happens is कि हम इसको कह सकते हैं a rise in short-run supply curve can also be termed as a very good term that I'm going to use. It will help you in your exams to score good marks, which is known as supply side shocks. It is a supply side shock. It's a temporary shock. It's a temporary increase. It's a short-term increase. A rise in aggregate supply. आपका short run aggregate supply curve right पे जा रहा है. It's a temporary supply shock. ठीक है ना? कि क्यों हो रहा है? In that because आप ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि short run aggregate supply बढ़ रहा है तो क्या? This is not solving a lot of problems because the government can't keep on reducing indirect taxes to increase aggregate supply, right? You can't depend on these policies of the government. You can't depend on the government to reduce indirect taxes all the time. That is why we are saying it's a short run supply shock. It's just a temporary increase. ठीक है जी? तीसरा चौथा जो रीजन है that is going to result into a rise in aggregate supply is a rise in subsidies. जब आप इकोनॉमी में सब्सिडीज बढ़ा देते हैं, you give subsidies to a lot of industries, maybe key industries that are dominating your different sectors that are dominating your GDP and your employment levels. If you subsidize those industries, definitely again it will reduce the cost of production and again it will increase your short run supply का. बेटा समझ आ रहा है सबको? ठीक है? उसके बाद reduction in commodity prices, like reduction in commodity prices. Price of commodities जब कम हो जाती हैं, such as what is commodities, like such as oil is a commodity, copper is a commodity. You can also call them raw materials, but these are also termed as commodities. Rubber गवर्नमेंट की रेगुलेशन का होगा? गवर्नमेंट रेगुलेशंस का डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो. ऑयल, कॉपर, रबर, आयरन और ये सारे के सारे ये सब रॉ मटेरियल्स नहीं है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज है. एंड अदर इनपुट्स. तो कमोडिटी इनपुट्स की जब प्राइसेस गिरेंगी तो अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होगी. इट्स अ टेम्पररी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व राइट पे जाएगा. इट विल बी अ शॉर्ट, इसको कहते हैं सप्लाई शॉक, राइट? जब तुम लॉन्ग रन पे जब मैं आऊंगा ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम उसको टेम्पररी सप्लाई शॉक मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ. And why am I saying that we shouldn't be relying on short-run policies? Again, number 6, जैसा निव्यान ने बोला, deregulations, ठीक है ना?
So deregulation means reducing / removing government regulations. Okay, so a lot of government regulations that the government thinks that these are unnecessary or they are just temporary or they are just increasing. So maybe the government can reduce such, provide some easiness for the firms that will help them reduce their cost of production. Because we know that government regulations, although they are important, and the government so much government ये policies बनाती है, but some of the policies can unnecessarily increase cost of production. So the government might deregulate and reduce those stringent policies and strict policies to improve the firm's cost of production, and that will again shift the SRAS to the right. ठीक है, ये भी point हो गया. Number 7 जो point था वो ये था कि reduction in import cost of raw materials. So you know that a lot of raw materials are imported. So a reduction in import cost of raw materials, such as oil. Oil is a raw material with Pakistan imports oil. ठीक है ना, raw material with an inelastic demand. Oil is a raw material with an inelastic demand. तभी हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब oil prices, world oil prices बढ़ती हैं, so if there's a surge in the oil prices, the world oil prices rise. It results into a rise in the price of electricity. It results into a rise in the price of fuel. It results into increase in gas prices. And because of a rise in these, so क्या कहते हैं, oil का impact जो है, it creates a rippling effect on all the other industries, because oil is a raw material. It's a major commodity. It's a raw material that is used in almost every industry. And it's key raw material that is used in industries, and that results into a rippling effect, and it affects other areas of cost of production as well, right? तो अगर एक चीज की कॉस्ट बढ़ती है, so a lot of products, हमारे बहुत सारे ऐसे products होते हैं जो दूसरे firms के लिए, दूसरी industries के लिए raw material होते हैं. Sometimes एक firm का finished good जो होता है वो दूसरे firm के लिए raw material होता है. सही है, तो एक अगर finished goods की prices बढ़ गई, दूसरे firms की raw material की prices बढ़ जाएंगी, तो उनकी cost of production भी बढ़ जाएगी. So overall remember कि oil prices जब बढ़ती हैं, इसलिए it creates a lot of inflation in the economy, क्योंकि cost of production आपकी बढ़ती है, जिसकी वजह से prices चीजें महंगाई आती है economy में, क्योंकि आपकी cost बढ़ जाती है ना. So अगर oil prices कम हो जाएंगी तो SRAS आपका राइट पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, रिमेंबर दैट. चलो डॉलर को ज्यादा आसान हो जाएगा ना बताना, 100 को सिंपल हो जाएगा. अच्छा बेटा, इसको मिटा के लिख लो. अगर डॉलर वीक कर रहे हैं तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ करेंसी के आगे लिख लो, इट विल इंक्रीज योर इंपोर्ट कॉस्ट लिख लो. ठीक है, अगर मैं उसको बेस बना रहा हूँ, यूएस को बेस बना रहा हूँ, तो मैं ये लिखूंगा. अच्छा अब देखो, अगर $1 $100 का है और $1 अब कितने का हो गया, $50 का हो गया. अगर $1 100 का है और $1 अब 50 का हो गया, सही है. अब मैं डॉलर को बेस बना रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ $1 100 का था, हम सब यूएस में, ठीक है, वी आर यूएस सिटीजन्स. अगर अब बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डॉलर डेप्रिशिएट्स. इसको हम क्या बोलेंगे, डॉलर डेप्रिशिएट्स, डॉलर लूजेस वैल्यू. डॉलर की वैल्यू गिर गई है. डॉलर की वैल्यू इसलिए गिर गई है क्योंकि $1 पहले सिर्फ $100 खरीद सकता था. अगर $1 हम देते हमें सिर्फ $100 मिलते थे, बट अब उसी $1 से हमें सिर्फ $50 मिल रहे हैं. हमें उसी $1 से हमें सिर्फ $50 मिल रहे हैं. डॉलर की वर्थ गिर गई, डॉलर की वैल्यू इन रुपीज गिर गई है. डॉलर लूजेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, सही है ना. विच मीन्स कि $1 नाउ बाइज लेस रुपीज. बट सिंस अभी मेरा जो मकसद है वो एक्सचेंज रेट कराना नहीं है तुम लोगों को, तो मैं बताने का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर $1 $100 का है, अगर $1 से $100 मिलते थे, अब $1 से $50 मिल रहे हैं, एंड लेट्स सपोज इफ यूएस इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान, लेट्स सपोज, ठीक है ना, और मुझे $100 का ऑयल इंपोर्ट करना है. If I want to import oil that is worth $100 and my currency has now, my dollar is now worth only $50, and I want to import $100 ka oil, so how many dollars do I have to give now? अगर यूएसए को पाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट करना है and it wants to import oil from Pakistan, and $1 is only worth $50, and I want to import oil that is worth $100, मुझे $100 का ऑयल मंगाना है, और अब $1 $50 का है सिर्फ, तो पहले अब मुझे कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे? हेलो, $2 $2 देने पड़ेंगे. वेरी गुड, मुझे $2 देने पड़ेंगे.
अगर मुझे 100 रुपए का ऑयल मंगाना है तो मुझे $2 देने पड़ेंगे। पहले मुझे $1 देकर 100 रुपए का ऑयल मिल जाता था, अब मुझे $2 देने पड़ेंगे, मुझे $2 देने पड़ेंगे 100 रुपए का ऑयल लेने के लिए, बिकॉज नाउ $1 इज नॉट वर्थ 100 रुपए एनी मोर, इनफैक्ट $2 आर वर्थ 100 रुपए नाउ। तो ये डॉलर जो है, डॉलर की वैल्यू गिर गई है, डॉलर लूजेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, डॉलर की वर्थ गिर गई है, डॉलर डेप्रिशिएट्स, डॉलर लूजेस वैल्यू, डॉलर ने अपनी वैल्यू गिरा दी रुपए के आगे। अब तुम 100 रुपए खरीदने जाते हो तो $2 दो, $1 ना दो, हमें हमें $2 दो। समझ में? आपसे बेसिकली कह रहा था कि $1 जो है वो उससे 100 रुपए खरीदे जा सकते हैं। So if I want to buy 100 rupees worth of goods, then how much does US citizen has to pay? US citizen has to pay $1. But now since dollar depreciates, the dollar loses value, तो $1 जो है वो कितने का है अब? $1 50 रुपीज का है, विच मीन्स कि $1 से अब हम सिर्फ 50 रुपए की गुड्स खरीद सकते हैं। तो अगर यूएसए को पाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट करना है और यूएसए को पाकिस्तान से $2 का ऑयल इंपोर्ट करना है, सॉरी, अगर यूएसए को पाकिस्तान से 100 रुपए का ऑयल इंपोर्ट करना है, अगर यूएसए को पाकिस्तान से 100 रुपए का ऑयल इंपोर्ट करना है, तो अब उसको, क्योंकि $1 सिर्फ 50 रुपए खरीद सकता है, तो अब उसको $2 देने पड़ेंगे, ताकि $2 से 100 रुपए का ऑयल आएगा। तो यूएसए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना। पहले वो $1 का ऑयल मंगवाता था, अब उसको वही ऑयल जो $1 में मंगवाता था, अब उसको वही ऑयल $2 का मंगवाना पड़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूएसए की तो बढ़ रही है। तो कहना मैं ये चाह रहा था बेसिकली आपसे कि जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है या आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है, ठीक है, और जैसे मैंने कहा डॉलर लूजेस वैल्यू, तो जब भी आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है तो इससे क्या होता है? इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है ना? इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव if demand for imports is inelastic, hence import rises. अब जब यूएसए पाकिस्तान से ऑयल मंगवाएगा $2 देकर, तो यूएसए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले वो उसकी इंपोर्ट कॉस्ट $1 थी, अब यूएसए की इंपोर्ट कॉस्ट $2 है। और यू नो दैट ऑयल इज अ की रॉ मटेरियल। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, तो बेसिकली दिस इज अनदर रीजन कि आपकी जो एसआरएएस है, बट लेकिन ये वाला तो मैं तो तुम्हें जो रीजन बता रहा हूं ना कि आपकी इंपोर्ट कॉस्ट हो जाती, ये तुम रीजन दोगे फॉर अ बेसिकली अ डिक्लाइन इन योर एसआरएएस, सॉरी, हाँ, ये तुम रीजन दोगे फॉर अ डिक्लाइन इन योर एसआरएएस, ठीक है? ये यहां पे तुम्हारा इट इज गोइंग टू, ये बेसिकली इसको अलग से लिख दो यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे अलग से लिख दो। इट बेसिकली शिफ्ट योर SRAS टू द लेफ्ट एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस। समझ में आ गई बात? और फिर अगर उल्टा हो रहा होगा, व्हाट इफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी, अगर करेंसी की वैल्यू तुम्हारी बढ़ रही होगी, अगर करेंसी की वैल्यू तुम्हारी बढ़ रही होगी, मिसाल के तौर पे $1 सपोज करो 50 रुपए का है, ठीक है, अब $1 100 रुपए का हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डॉलर एप्रिशिएट्स, डॉलर इंक्रीजेस इन वैल्यू। अब $1 की वर्थ 50 रुपए के बराबर नहीं है, बल्कि $1 की वर्थ 100 रुपए के बराबर है। अब वही एक डॉलर जिससे आप 50 रुपए का ऑयल मंगवा सकते थे, अब आप उसी $1 से 100 रुपए का ऑयल मंगवा सकते हो। हाउ कूल! तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपको पाकिस्तान से 50 रुपए का ऑयल इंपोर्ट करना है, तो आप, अगर मैं आपसे बोलूं अगर आपको पाकिस्तान से 50 रुपए का ऑयल इंपोर्ट करना है, तो आपको कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे? अब if you want to import oil that is worth 50 rupees from Pakistan now, how many dollars do you have to pay? You have to pay half a dollar. पहले तुम्हें $1 देना पड़ता था 50 रुपए का ऑयल मंगाने के लिए, अब
हमें 50 रुपए का ऑयल मंगाने के लिए $0.5 देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। डॉलर 100 रुपए का तेल खरीद सकता है, अब 50 का तेल मंगाना होगा तो $0.5 देना पड़ेगा। तो अब तुम वही तेल $0.5 में मंगा रहे हो, तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल फॉल एंड एज अ रिजल्ट इट विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट। सही है। अब बेसिकली इसको लिख लेते हैं। गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट। गवर्नमेंट किस तरीके से इसका फायदा उठा सकती है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है करेंसी के साथ? हाउ कैन द गवर्नमेंट मैनिपुलेट द करेंसी? हाउ कैन द गवर्नमेंट मैनिपुलेट द करेंसी टू बेसिकली reduce the cost of production? Yes guys, how can the government manipulate the currency and reduce the cost of production? Muneeb will answer this. How can the government manipulate the currency and reduce the cost of production? Government कैसे करेगी? Hence government can artificially increase value of currency by revaluing it. Revaluing का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू बढ़ाना, revaluing it to reduce import cost and increase SRAS to right. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को राइट पे ले जाएंगे। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्ट पे चला जाएगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होगी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे चला जाएगा। सब्सिडीज गिर रही होंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे होंगे, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व लेफ्ट पे चला जाएगा। रेगुलेशंस बढ़ रही होंगी, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही होगी, तो अगर आपकी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की बढ़ रही होगी तब भी सप्लाई कर्व आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्ट पे चला जाएगा। या अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी हो या डीवैल्यू हो चुकी है और अगर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स हैं वो इनइलास्टिक हैं, दैट इज योर पीडी ऑफ इंपोर्ट्स इज इनइलास्टिक, तो उस केस के अंदर भी आपका सप्लाई का एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. Why? Because the thing is that the same $1 will be able to buy less worth of Pakistani imports from Pakistan, but since your imports are inelastic, so you will be needing to buy or purchase or import the same quantity of Pakistani imports. तो आपको ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे अपने पास से, राइट? जब आपको ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे तो आपके लिए महंगा पड़ेगा. एंड सिमिलरली you know what is going to happen is simply your import cost will start rising and your cost of production rises, and then it is going to fuel your raw material cost prices and obviously your cost of production, and hence your supply curve, that is your short run aggregate supply curve, will shift to the left.